Good morning, students. So we are doing about the human settlement. About rural settlement we have discussed. Now we will discuss about the urban settlement. How urban settlement was different types of urban settlement. So first is given on the basis of size and function. Size means आकार जो होता है बड़ा, और functions what are the activities done in the particular urban areas. तो वो डिस्कस करेंगे. सबसे स्मॉल जो आपका अर्बन एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड टाउन. दैट इज़ कॉल्ड टाउन. कस्बा इसको बोलते हैं. जो विलेज के लाइक ही होता है, विलेज की तरह होता है, बट सम एक्टिविटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम विलेज. विलेज से कुछ एक्टिविटीज़ उसकी डिफरेंट होती है. व्हाट आर द एक्टिविटीज़ डिफरेंट इन दैट? फंक्शंस लाइक रिटेल एंड होलसेल ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग आर एसोसिएटेड. दोज आर नॉट फाउंड इन द विलेजेस. ये विलेजेस में आपको नहीं मिलेगी, बट ये आपको टाउन में मिल जाएगी. रिटेल, होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको वहाँ पे मिल जाएगी. स्कूल मिल जाएंगे. Professional services exist in towns. Professional services, you know very well, school, college, institutions, those are found in the towns. So they are similar to town, village, but there are some difference on the basis of these functions: retail, wholesale and manufacturing, and professional services like school, college, universities. So school, college are found in the towns. So this is the town. Next is given city. It is larger than town. क्या होता है? टाउन से बड़ी होती है. लार्जर देन टाउन, हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस. इट मीन्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर डन इन द टाउन्स इन सिटीज़ दे आर मोर इन कंपेरिजन ऑफ टाउन. यानी वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी आपको सिटी के अंदर. हैव ए ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स. इट मीन्स ऑल फ्रॉम ऑल साइड्स द टर्मिनल्स आर फाउंड. टर्मिनल का मतलब जहाँ पे चारों साइड से आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो. Major institutions like school, college, universities, hospitals, these are found in that. Administrative offices like you can say the court and other DC office, these are found in the cities. City with a population of 1 million is a million city. और सिटी हम किसको बोलते हैं? जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख हो, 1 मिलियन हो पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? सिटी बोलते हैं. लेस देन 1 मिलियन ऑल्सो इज कॉल्ड सिटी, उसको भी हम सिटी बोलते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टाउन एंड सिटीज़. टाउन का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे आदमपुर है तो दिस इज हांसी है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टाउन्स. सिटी हिसार, यू कैन से फतेहाबाद, दीज ऑल आर सिटीज़. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द conurbation. This word is given conurbation. This word is given by one person, Patrick Geddes. This word was used by Patrick Geddes. And how this conurbation is made? By merging of separate town and cities. जब हम कई टाउन्स और सिटीज़ को इकट्ठा मिला देते हैं तो उससे क्या बनता है? आपका conurbation मिलता है. Example is given Tokyo, Chicago and National Capital Territory. Now conurbation is given. For example, in Delhi you have seen the small areas जैसे तुगलकाबाद है, जनकपुरी है, द्वारका है. So these areas are merged, then this conurbation is made. These are the cities. ये क्या थे? ये सिटी थे और टाउन थे. जब मिल गए ये सारे तो क्या बन गया? कॉनुर्बेशन मिल गया. तो दिल्ली बिकम कॉनुर्बेशन इन द एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉनुर्बेशन. कॉनुर्बेशन के एग्जाम्पल में दिल्ली का इसलिए दिया गया कि दिल्ली के अंदर अलग अलग एरियाज़ थे जो पहले टाउन थे या सिटी थे. नाउ दे मिक्स अप विद दिल्ली, सो इट बिकम कॉनुर्बेशन. सो इट इज़ द mixture of separate town and cities. Example is given Tokyo, Chicago and New Delhi. So Tokyo and Chicago also made in this way. There are also small towns and cities, they are mixed with Tokyo. Next is given megalopolis. Megalopolis, it is a super metropolitan region, union of conurbation. It is a union of conurbation. It means when there are so many conurbations mix up, so it become the megalopolis. Example is given Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. These all are megalopolis because they are mixed up with the other cities also. यानी कॉन्वर्बेशन में भी दिल्ली आ जाएगा और उसके बाद में मेगालोपोलिस में भी क्या है? आपका दिल्ली आता है. तो यूनियन ऑफ कॉन्वर्बेशन, इसके पास का एरिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी में आ जाता है. बेंगलुरु है, चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है. दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मेगालोपोलिस. नेक्स्ट इज गिवन अबाउट द मेगा सिटीज ऑल्सो कॉल्ड मेगालोपोलिस. Megalopolis also called to mega cities. Next we will discuss about the one more thing, million city. Million city, which city is called million city? Have population more than 1 million.
यानी जिस सिटी की पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिलियन सिटी बोलते हैं। एंड नंबर इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, और वहाँ पे पॉपुलेशन की नंबर है वो इंक्रीज होता है रैपिडली। और लंदन था वो फर्स्ट, लंदन वॉज द फर्स्ट सिटी टू रीच 1 मिलियन। सबसे पहले लंदन था वो 1 मिलियन पॉपुलेशन उसकी हुई थी। नेक्स्ट इज गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़। मेगा सिटीज़ मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 करोड़, यानी जहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ के लगभग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगा सिटीज़ बोलते हैं। तो दिल्ली है फर्स्ट सिटी दैट वाज बिकम मेगा सिटी, दैट वाज न्यूयॉर्क। सबसे पहले जो सिटी बने था मेगा सिटी वो कौन सी थी, न्यूयॉर्क था। और नंबर इज मेगा सिटी आर 25। इट मे बी इन यू गिवन डिफरेंट इन योर बुक, NCERT बुक में ये अलग अलग मिलेंगे डेटा। You will see in your NCERT book if it is 25 you will revise 25, it is more than 25 because it is increased, ये increase हो गए हैं। तो you will revise according to your book, बुक में जो दिया हुआ है वो आप NCERT बुक में से रिवाइज कर लेना कि नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ कितने हैं पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज गिवन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। ह्यूमन सेटलमेंट्स लाइक रूरल एंड अर्बन बोथ, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय दीज सेटलमेंट्स दैट वी विल डिस्कस। First problem that is faced by the developing countries and human settlement, that is population. Due to more population land is less, so that is also a problem. Congested houses, that's why the houses are very congested, भीड़ भाड़ वाले घर मिलते हैं, बहुत नज़दीक घर मिलेंगे आपको। कारण क्या है कि लैंड है वो आपकी कम है। लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर फैसिलिटी इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल प्रॉपरली, पानी है वो भी अवेलेबल नहीं होता प्रॉपरली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। एंड सैनिटेशन दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में सफाई व्यवस्था जो है गाँव की या शहरों की बहुत कम मिलेगी आपको। नाउ डे बाई डे द सिटीज़ आर इम्प्रूविंग, आवर कंट्री इज ऑल्सो इम्प्रूविंग इन दिस। स्वच्छ भारत अभियान चलाकर, जैसे नाउ रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द क्लीन सिटीज़, इंदौर बिकम द फर्स्ट सिटी, इंदौर है अगेन वो आपका फर्स्ट सिटी में आया है क्लीनलीनेस के अंदर। तो सैनिटेशन फैसिलिटी भी अब इम्प्रूव हो रही है बट नॉट इन ऑल सिटीज़। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द फैसिलिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिटीज़ एंड विलेजेस, दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपर, देर आर ऑल्सो लैकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको कम मिलेगी। नेक्स्ट इज गिवन प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट में मेनली क्या प्रॉब्लम आती है, अनप्लान्ड सिटीज़ क्रिएट कंजेशन। फर्स्ट थिंग इज गिवन अनप्लान्ड सिटीज़। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ विच आर मेड इन आवर कंट्री दे आर अनप्लान्ड, उनकी कोई प्लानिंग के थ्रू नहीं बनाया गया, इसलिए वहाँ पे क्या होता है भीड़ भाड़ हो जाती है और उसके कारण वाटर फैसिलिटी है, सैनिटेशन है, देज प्रॉब्लम्स आर फेस्ड। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, आपको पता है जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, वहाँ पे हाउसिंग की शॉर्टेज है। पीपल दे आर लिविंग इन द स्लम्स, जो धारावाही स्लम्स आपने सुना होगा मुंबई के अंदर हैं। तो उसका कारण क्या है कि हाउस की शॉर्टेज है वहाँ पे उस एरिया के अंदर, और उसके कारण क्या होता है स्लम्स है वो बढ़ जाती है उसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। हर एक सिटी आप जो डेवलपिंग कंट्री का है उसमें मोस्टली आपको एक स्लम मिलेगी, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया मिलेगा सिटी के अंदर, तो वो भी एक अर्बन प्रॉब्लम है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लीव्स इन स्लम्स एंड स्कैटर सेटलमेंट्स, आपको क्या है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो जब उनको हाउसिंग नहीं मिलेगी तो वो कहाँ पे रहेंगे, स्लम झुग्गी झोंपड़ियों में रहेंगे, और वहाँ पे आपको सेटलमेंट मिलेगी, वो स्कैटर मिलेगी। स्कैटरमेंट का मतलब जो प्रॉपरली प्लान नहीं है, प्रॉपरली वेल सेटल्ड नहीं है। मोस्ट ऑफ द मिलियन प्लस सिटीज़ इनहेबिटेट्स 1/4 ऑफ पॉपुलेशन इन इलीगल सेटलमेंट। ये इलीगल सेटलमेंट का मतलब है अवैध कॉलोनीज़। यू कैन फाइंड आउट इन एवरी सिटीज़ इन आवर कंट्री, हमारे हर एक एरिया में आपको ये अवैध कॉलोनियाज मिलेगी, इलीगल सेटलमेंट्स मिलेगी। दोज वर नॉट सेटअप बाय द गवर्नमेंट, जिनको सेटअप गवर्नमेंट ने सेटअप नहीं किया बट वहाँ पे पॉपुलर लोग रह रहे हैं। तो ये भी एक कारण है, इलीगल सेटलमेंट होती है उसके कारण। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उस एरिया में लोग क्या करते हैं, इलीगल सेटलमेंट बना लेते हैं। इन एशिया अबाउट 60% पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम। एशिया के अंदर अर्बन एरियाज़ के अंदर 60% पॉपुलेशन है वो आपकी रहती है किसमें, स्लम में रहती है, झुग्गी झोंपड़ी में रहती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स विच आर गिवन वन बाय वन वी विल डिस्कस। फर्स्ट इज गिवन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अर्बन एरियाज़ के अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कौन सी, लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फोर्स पीपल टू मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। वाई पीपल मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़, क्योंकि अर्बन रूरल एरिया के अंदर आपको इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ या आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है, इसलिए लोग क्या करते हैं रूरल से अर्बन की तरफ चले जाते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में भी क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा उनको नहीं मिल पाता। माइग्रेंट पॉपुलेशन जनरेट स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज़।
जो लोग माइग्रेशन करके वहाँ पे आए हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे लोग तो पहले थे ही, दोज हु वर डूइंग दिस वर्क। तो उससे क्या होता है, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स इंक्रीज्ड, उससे क्या होता है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अर्बन एरिया के अंदर उनको भी क्या है, इतना ज़्यादा रोज़गार नहीं मिल पाता। ऑलरेडी वहाँ पे लोग जो काम करने वाले हैं और चले गए, तो उससे क्या होता है कि उनको और काम नहीं मिल पाता, तो दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल, सामाजिक जो आपका है वो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। सिटीज़ हैव इनएडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक व्यवस्था जो है वो प्रॉपरली नहीं है। फेस सेवरल सोशल इल्स, सामाजिक बुराइयाँ वहाँ पे आपको बहुत मिलती है, चोरी है, डकैती है, ये आपको ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन लीड टू थेफ्ट क्राइम, लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, तो वो काम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, थेफ्ट, चोरी और क्राइम करना स्टार्ट कर देते हैं। मेल सिलेक्टिव माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज डिस्ट्रैक्ट द सेक्स रेशियो, और मोस्टली जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में माइग्रेशन जो करते हैं वो मेल करते हैं, नॉट फीमेल, तो वहाँ पे मेल सेक्स रेशियो वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो इम्बेलेंस क्रिएट करता है सिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट इज गिवन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो वहाँ पे इन्वायरमेंट का भी प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाएगा। लार्ज अर्बन पॉपुलेशन रिलीज ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ वेस्ट, जब लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन वहाँ पे रहेगी तो वहाँ पे वेस्टेज मटेरियल होगा वो भी लार्ज अमाउंट में होगा, तो उसको कहाँ पे डिस्पोज किया जाए, दैट इज़ ऑल्सो ए मेजर प्रॉब्लम इन द अर्बन एरियाज। Improper sewage system create unhealthy conditions. You have seen most of the cities problem facing during the rainy season. जब बारिश आती है तो उस टाइम क्या होता है, जो सीवरेज सिस्टम है वो सारा आपका क्या है, गड़बड़ा जाता है, और उससे क्या होता है कि सीवरेज है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, तो वो अनहेल्दी कंडीशन क्रिएट करते हैं। लार्ज यूज ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर पोल्यूट एयर, यू नो वेरी वेल इन cities and towns or mega cities there are most of the industries those operate, they are using the old machines। तो वो जो पुरानी मशीन्स होती है वो क्या यूज़ करती है, ट्रेडिशनल फ्यूल, जैसे आपका कोल है, पेट्रोल है, तो ये यूज़ करती है, जिससे क्या होता है आपका इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता है, एयर पोल्यूट होती है। ह्यूज कंक्रीट स्ट्रक्चर क्रिएट हीट आइलैंड्स, स्ट्रक्चर वर्क का मतलब होता है कि इसके अंदर आपको पता है इंडस्ट्री चलती रहती है, तो उसके अंदर से जो आपकी हीट गर्मी पैदा होती है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जो जैसे दिल्ली का आपने देखा होगा, ड्यूरिंग द समर सीजन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज गिवन लिंक बिटवीन रूरल एंड अर्बन, व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन रूरल एंड अर्बन, यू नो वेरी वेल रूरल पीपल्स the work they are doing or the agriculture work they are doing, they are sending that things in the market, urban areas। तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया का लिंक तो आपस में है ही, विदाउट लिंक हाउ कैन दे डू दिस वर्क। तो क्या लिंक है वो हम डिस्कस करेंगे। सिटीज़ एंड रूरल आर लिंक्ड बाय मूवमेंट ऑफ गुड्स, रिसोर्सेज एंड पीपल्स, सिटीज़ और रूरल एरिया जो है वो लिंक होते हैं किसके द्वारा, गुड्स के द्वारा, रिसोर्सेज के द्वारा और पीपल के द्वारा। आपको पता है लोग जो गाँव में रहते हैं वो शहरों में भी चले जाते हैं, शहरों के भी लोग गाँव में आ जाते हैं, तो इनके थ्रू वो क्या होता है, उनका आपस में लिंकेज होता है, गुड्स, रिसोर्सेज और इसके द्वारा। लिंकेज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी, लिंक होना ज़रूरी है अगर हमें डेवलपमेंट करना है ह्यूमन बींग का, तो वी हैड टू डू द लिंकेज बिटवीन द रूरल एंड अर्बन। रूरल अर्बन माइग्रेशन आपको पता है इंक्रीज हो गया है, रूरल एरिया में भी लोग आ रहे हैं, अर्बन एरिया से भी लोग जा रहे हैं, अर्बन एरिया लोग आ भी रहे हैं, तो माइग्रेशन क्या है, दोनों को लिंक कर रहा है। रूरल पॉवर्टी शुड बी इरेडिकेटेड टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ रूरल लिविंग, रूरल पॉवर्टी जो है, ग्रामीण जो गरीबी है उसको हम कैसे हटा सकते हैं कि रूरल एरिया के अंदर हम थोड़ा सा क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको इम्प्रूव कर देंगे, तो वहाँ पे भी क्या होगा आपका रूरल एरिया में भी प्रॉब्लम्स जो गरीबी की है, पॉवर्टी की, वो ख़त्म हो जाएगी। नाउ टू डू यू नो विद ये में व्हाट इज़ हेल्दी सिटी, एक हेल्दी सिटी किसको माना जाता है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक हेल्दी सिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया, वो क्या है, एक क्लीन एंड सेफ़ इन्वायरमेंट। पहले तो उन्होंने कहा है कि क्या होना चाहिए, एक क्लीन और सेफ़ इन्वायरमेंट होना चाहिए। सेफ़ का मतलब है वहाँ पे क्राइम जो है वो बिल्कुल ना हो। मीट द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनको वो बेसिक नीड्स है वो पूरी होती हो। इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट, और जो आपका गवर्नमेंट है वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जो बनती है, जैसे आपका म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो उनके अंदर कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। कम्युनिटी मीन्स द पीपल दोज हु आर लिविंग इन द सिटीज़, दे शुड इन्वॉल्व इन दिस। प्रोवाइड्स इजीली एसेसिबल हेल्थ सर्विसेज, और वहाँ पे क्या है आपको हेल्थ सर्विसेज है वो आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्दी सिटी बोलते हैं।
नेक्स्ट इज अर्बन स्ट्रेटजीज। यूएनडीपी ने एक अर्बन स्ट्रेटजी बनाई थी, अर्बन प्लानिंग बनाई थी, वो क्या है वो बताएगी इसके अंदर। इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर। पहले तो हमें क्या करना है, जो आपके अर्बन एरिया में रह रहे हैं उनको प्रॉपरली हाउसिंग अवेलेबल करवाना जरूरी है। शेल्टर मीन्स रहने के लिए घर अवेलेबल करवाना जरूरी है जो गरीब लोग हैं। देन बेसिक सर्विसेज जो आपका है एजुकेशन, हेल्थ एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा अर्बन स्ट्रेटजीज के अंदर, अर्बन प्लानिंग के अंदर रखनी पड़ेगी अर्बन एरिया के अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इम्प्रूविंग वुमेन्स एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। दूसरा कहा गया है कि जो आपका वीमेन है उनको भी क्या है, जो आपको बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो उनको मिलनी चाहिए, सर्विसेज उनको भी अवेलेबल होनी चाहिए। अपग्रेडिंग एनर्जी यूज एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी एनर्जी रिसोर्सेज है वो जो पुराने हमारे हैं उनको यूज़ करके और छोड़कर हमें नए जो हैं जो आपका ज़्यादा पॉल्यूशन इन्वायरमेंट नहीं करते हैं उसको यूज़ करना चाहिए। ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें बनाना चाहिए, जैसे आपका OD1 आपने दिल्ली में सुना है वैसे। और रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन को हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर था अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड। रिमेनिंग इफ यू हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस ऑन द जूम ऐप, सो you will make your notes from this chapter and find out the answer of text question also. Thank you, have a nice day.